in the feeding of any high yielding animals, or we can say there are 5 different strategies to fulfill or to get more consistent milk production through high yielding animals. ओके, क्लियर ना? सारा ये क्लियर हो गया था ना ग्राफ उस दिन अच्छे से? कोई मेरे को बताएगा कौन कौन से 5 फेजेस थे? एनीवन? Anyone can maintenance plus an extra 4 to 5 liters for each liter of milk produced. It means 60 to 70 liters required for their maintenance and 4 to 5 liters for their production. In spite of these two, water requirement increases by 6 liters per day for every 4 degrees Celsius raise in air temperature. 4 डिग्री सेल्सियस क्या है ये? 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा फ्रॉम रूम टेम्परेचर से, जब भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पर, तो 6 लीटर्स पर डे उसका वाटर रिक्वायरमेंट भी एनिमल का इंक्रीज हो जाएगा. लैक्टेटिंग काउ विल ड्रिंक 150 to 200 liters of water per day in the summer months. ओके, अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया था उस दिन नहीं है तो मैं स्किप करूं, सीधे टॉपिक पे आऊं क्या, या फिर सुनना है, देखना है? Here, crude protein requirement. Here, crude protein requirements are on the screen. Where early lactation animal requires 16 to 18% crude protein in their ration. Mid lactation 14 to 16%, late 12 to 14%, and in dry period 10 to 12%. In these data, you can see that the crude protein requirement gradually it decreases as animal progresses to their to his to her lactation cycle. ओके, या लैक्टेशन पीरियड में जैसे जैसे एनिमल अर्ली लैक्टेशन से लेट लैक्टेशन तक, और फिर ड्राई पीरियड कितने दिन का बताया था मैंने सर? अबाउट 2 मंथ. ड्राई पीरियड में जाता है लगातार 60 डे. ओके, क्या नाम भैया? क्या नाम बताया? चलो, ड्राई पीरियड जो है मतलब ये लगातार जैसे जैसे जो उसका लैक्टेशन प्रोग्रेस करता है, तो अर्ली लैक्टेशन से लेट लैक्टेशन में क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाती है. ड्राई पीरियड में मिनिमम में 10 to 12%. अनडिग्रेडेबल और बाईपास प्रोटीन should be 35 to 40% of crude protein in early lactation and 30 to 35% in crude protein in late lactation. Crude fiber or energy requirements in early lactation 75% of dietary dry matter, in late lactation 65% of dietary dry matter. In dry period, the TDL requirement is about 55% of dietary dry matter. Non-fiber carbohydrates 30 to 40% of the dietary dry matter. Here, maximum level of fat in diet should be 7% from all sources. If we partition dietary fat, then it is not more than additional fat should not more than the 4% in the diet, and 3% 2 to 3% come from the ration. Salt 0.5% of the ration dry matter or 1% of the concentrate mixture. Approximately 1% of the grain mix should be a calcium phosphorus mineral mixture. यानी जो आप ग्रेन मिक्स दे रहे हैं उसका 1% मिनरल मिक्सचर दिया जाता है. 3% ऑफ कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर और 1% intake. Vitamins, which vitamins are necessary for the ruminants during the lactation period? These are vitamin A, D, E. Form, what should be the ration form? Fine chopping for forages and concentrates. It is because of their written time. If the ration very fine
in the form of very fine particles, its retention time is very low and IT in very less time. So the time for the digestion and the absorption should not be proper. Okay. चलो अब शायद कोई नहीं आएगा, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ. So the cow has a dry period of about 2 months, but in practice it may be longer. मतलब प्रैक्टिकली देखा जाता है ऐसे तो थ्योरेटिकली 2 महीने से के आसपास का अपन ने बात करी थी ड्राई पीरियड होनी चाहिए, लेकिन ये उससे ज्यादा हो जाता है क्योंकि कई बार जो अपन कंसेप्ट मतलब कार्विंग जो है वो लंबी हो जाती है, कंसेप्शन हमारा जो एज्यूम करते हैं वो उससे डिफर करता है. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड काउ शुड बिल्ड अप द बॉडी रिजर्व लॉस्ट इन अर्ली लैक्टेशन. आपको जब मैंने लैक्टेशन का बताया था तो मैंने बताया था कि जो सप्लाई है, मिल्क सप्लाई है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो लैक्टेटिंग एनिमल की बॉडी को या लैक्टेटिंग एनिमल को सप्लाई होने वाले न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा होते हैं, जिस कारण से उसके बॉडी रिजर्व से फैट और प्रोटीन का कहना चाहिए एलोकेशन टुवर्ड्स द मिल्क प्रोडक्शन होता है और वो बॉडी कंडीशन लॉस्ट होती है. तो ये जो फेज है ड्राई पीरियड, ये उस फेज में जो लॉस हुआ है उसका बॉडी कंडीशन, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. के साथ साथ जो फीटस है उसकी प्रॉपर एंड रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द मेमोरी टिश्यू. यानी फीटस की प्रॉपर ग्रोथ, मेमोरी टिश्यू के रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ये ड्राई पीरियड का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिससे अब मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा वेट गेन किस फेज में मिला था हमको. सबसे ज्यादा वेट गेन हमको थर्ड फेज में मिला था ना, लेट लैक्टेशन में. याद है हमने 3 कर्व पढ़े थे. पहला कर्व था कौन सा? मिल्क प्रोडक्शन का. मैक्सिमम या पीक मिल्क प्रोडक्शन हमको कहाँ मिला था? अर्ली लैक्टेशन में. और जो फेज 1 में मिला था अर्ली लैक्टेशन में. और जो ड्राई मैटर इनटेक है उसका पीक हमको कहाँ मिला था? मिड लैक्टेशन में. फेज 2 है ना, फेज 2 में मिला था. और जो तीसरा कौन सा था? वेट गेन है ना, बॉडी वेट, वो हमको पीक कहाँ पे मिला था? लेट लैक्टेशन में. याद है ना, मैंने 3 आपको ये पॉइंट्स बताए थे कि सभी का यही हाईलाइटेड पॉइंट है जो आप लोग को एग्जाम में हाईलाइट करना है. लो लेवल ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी in the diet of cow and buffaloes are liable to affect the reproductive system in a number of ways. If the protein or energy level low in the cow or buffalo's diet, it will hamper reproductive system or different reproductive cycles which hampers or affect the animals adjacent या successive production cycle also. So disturbing the estrous cycle. First, if the production, if the energy or protein supply to the animal is not as per the requirement, then it will disturb the estrous cycle of the animal. Then prolonging postpartum and estrous period. I discussed earlier that the time taken by the uterus to get its proper or normal stage or shape, size and function known as, क्या बोलते हैं उसको? बताया था आपको कि यूट्रस को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग वापस से स्टार्ट करने के लिए जो पीरियड लगता है या जो एक फेज होती है उसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. सॉरी, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. पेरीपार्टम कहाँ से आ गया भैया?
पेरीपार्टम क्या होता है? पेरीपार्टम पीरियड कहीं का मत कहीं बिफोर पार्चुरेशन। पेरीपार्टम पीरियड बताया था मैंने 2 weeks prior to 2 weeks after the parturition, also known as transition period. Peripartum period is the 14 days before to 14 days after of parturition. Okay, अगर एनिमल को प्रॉपर एनर्जी और प्रोटीन की सप्लाई नहीं होगी ड्यूरिंग दी पीरियड, ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, देन द पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा? जो मैंने आपको बोला था इन्वोल्यूशन पीरियड कितना बताया था मैंने आपको, 45 to 60 डेज ना, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस 55 to 75। हाँ है ना, 60 to 75, वैसे 45 to 60 डेज है, ठीक है। तो अब अगर मान लो आप 75 डेज में भी मैक्सिमम लिमिट में भी यूट्रस इन्वॉल्यूट हो गया है, तो आप, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रैक्टिस में आफ्टर 3 months ऑफ पार्चुरेशन यानी इन दी लेट अर्ली लैक्टेशन में एनिमल को, या इनिशियल ऑफ मिड लैक्टेशन में जो फार्मर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं उसके सर्विस कराना, जिससे कि उसका जो इंटर काविंग पीरियड है वो 3 से 4 महीने से ज्यादा ना हो, यानी एनिमल 2 से 3 महीने से ज्यादा ड्राई ना रहे, ठीक है ना। एनिमल की रेयरिंग इसलिए हो रही ना कि हम उससे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन ले सकें और परसिस्टेंट कंसिस्टेंट मिल्क प्रोडक्शन उससे ले सकें, है ना, ऐसा ही है ना। अदर लॉस इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सर्विस पर कंसेप्शन। अच्छा क्या होता है, नंबर ऑफ सर्विस इज लेस पर कंसेप्शन और नंबर ऑफ सर्विसेज मोर पर कंसेप्शन। मतलब डिजायरेबल क्या कैरेक्टर है हमारे लिए कि पर कंसेप्शन सर्विस रेट, ये पहले ही पता है। सर्विस पर कंसेप्शन क्या होता है? यस सर। सर्विस पर कंसेप्शन क्या होता है पता है सबको? यस सर। इतना धीमे से यस सर बोल रहे, बताओ क्या होता है? सर नंबर ऑफ सर्विसेज जो लगेंगी, मतलब जो भी काऊ है उसको प्रेग्नेंट करने के लिए। हाँ, तो क्या एक से ज्यादा लगती है हर बार? नहीं सर, वो डिपेंड करता है, मतलब हाँ, तो अच्छा डिजायरेबल क्या है कि 1-2 सर्विस में ही आ जाए कि 3-4-5 सर्विस में वो कंसीव करे, क्या डिजायरेबल है? सर 2 में ही आ जाए, 1-2 में ही आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्विस should be less per conception is desirable. Okay, the mechanism of inhibitory action is on the hypothalamus, affecting the release of luteinizing hormone releasing factor from anterior pituitary. ये क्या मतलब है? अगर प्रोटीन और एनर्जी की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो किस लिए जरूरी होता है बताएगा कोई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन कराएगा। हाँ, ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ, लिखा है सामने, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। क्या नाम है भैया? हाइपोथैलेमस बताया जिसने? सही बताया, मैं नाम पूछ रहा हूँ। हेलो, गजेंद्र, तुम हमेशा बताते हो, वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो जो ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग फैक्टर है, जो कि कहाँ से बताया गजेंद्र ने सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से, वो नहीं होगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो जो सक्सेसिव नेक्स्ट आने वाला ओव्यूलेशन है वो भी हैम्पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चेंज हुई है? यस सर, यस सर। हो गई ना? यस सर।
इन केस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं इसमें फुल स्क्रीन में स्लाइड चेंज करता था तो आप लोग की स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। इन केस the energy requirement is met fully from time to time during lactation, there may be further increase in milk production as well as persistency from such cows. अगर जैसा अपने उस समय भी डिस्कस किया था कि जो हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं उनको अगर प्रॉपर गाइडलाइन जैसी अपन ने डिस्कस करी थी उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है तो मिल्क प्रोडक्शन तो अच्छा रहेगी, साथ ही बेटर परसिस्टेंसी भी मिलेगी। परसिस्टेंसी क्या होती है मिल्क प्रोडक्शन की, कोई बताएगा? सर कंटिन्यूटी विथ लेस वेरिएशन इन मिल्क प्रोडक्शन। हाँ, और उसमें ग्राफ में मैंने क्या बताया था कि आप मतलब ग्राफ देख के जो लैक्टेशन कर्व है वो कैसे बताओगे कि परसिस्टेंसी है उसमें मिल्क प्रोडक्शन में कि नहीं? धीरे-धीरे चेंज आएगा सर उसमें। स्लोप विल नॉट वेरी। हाँ सर स्लोप जो होगा स्लाइटली चेंज स्लोप होगा। फ्लैट मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। पीक पे पहुंचने के बाद जो स्लोप है वो फ्लैट आएगा, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। और जो उसमें जैसे इन्होंने बताया कि जो चेंजेस हैं वो बहुत एब्रप्ट चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। High protein diets are reported to be beneficial for higher milk production and superior growth rate. It has been estimated that 2/3 of increase in milk yield is due to the adequate protein and 1/3 is a result of optimum energy in the ration. I think this also discussed earlier in the strategy that the milk production, high milk production, 2/3 increase in milk comes from protein and 1/3 is a result of optimum energy in the ration, है ना? So next is feeding of breeding bull calves and are to be raised as future breeding sires should be generally be kept on a liberal amount of milk for the first 6 months or more of their life. Milk is also supplemented with calf starter from 2 weeks of age onward along with good quality hay. सबसे पहले ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ब्रीडिंग बुल है एक बेसिक सबसे बेसिक क्या है कि हम सिलेक्ट करेंगे किसी हर्ड में से कि ये इसको हम ब्रीडिंग बुल की तरह यूज करेंगे, क्या पैरामीटर होना चाहिए? कोई बताएगा? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग, एलपीएम में भी पढ़ा होगा। सर द बुल शुड बी सेलेक्टेड सर। सर उसका जो हेलो, यस सर, सुन रहे हैं? हेलो, यस सर। हाँ बताएं। सर जो बुल होगा सर उसका जो मतलब उसकी मदर सर शुड बी हाई मिल्क यील्डर एंड सर जिससे वो मिला है सर उसका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा जल्दी गेन फास्टली बॉडी वेट गेन। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? गजेंद्र हो ना? और दूसरे इस बार किसी ने बताया है? यस सर, गजेंद्र ने बताया है। गजेंद्र तो अभी है, और ये किसने बताया? सर अनिकेत। गजेंद्र नहीं बताया, अनिकेत। अच्छा, वेरी गुड भाई। तो इसमें भी लिखा है ये चीज कि देखो जो भी बुल हम सिलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए उसका जो डैम है वो शुड बी हाई यील्डर एंड परसिस्टेंट फॉर हर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। Young males to be used for draft purpose should only be castrated at 12 to 15 months of age and their feeding schedule should be identical to that of heifers, ठीक है। जो ड्राफ्ट पर्पस समझते हैं ना आप लोग, ड्राफ्ट पर्पस के लिए जो यूज करना है मेल्स को, यानी जैसे प्लॉइंग ऑफ कार्ट है ना, हल चलाने के लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या कार्ट चलाने के लिए जिन भी बुल का यूज किया जाता है उनको, ये तो एलपीएम का पार्ट है, 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज रिकमेंडेड है उनके कैस्ट्रेशन के लिए और उनको हीफर की तरह ही उनका हमको वो देना है उनको न्यूट्रिशन। To economize the cost of feeding more green fodder and hen
A can be fed up to 15 to 20 kg per day. मतलब जो वर्किंग बुलक्स हैं उनके लिए वर्किंग बुलक्स हैं उनके लिए बुल के लिए हम या सॉरी जो ब्रीडिंग बुल्स हैं उनको इकोनोमाइज मतलब उनको देखो वो प्रोडक्शन तो उनसे हो नहीं रहा है ना, वो अपने अपन ने ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखे हैं, तो उनका काम है केवल न्यू जनरेशन लाना, तो इसीलिए उनको अपन को लीस्ट कॉस्ट राशन जो कि उनकी पूरी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, अपन ऐसा उनको राशन देते हैं. Breeding bulls of 350 to 400 kg body weight at 30 months or 2.5 years of age, and this age they are ready to be used for breeding. जो आइडियल कंडीशन है उसमें आप लोगों ने शायद एलपीए में पढ़ा होगा कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी है या फीमेल्स में ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रस है इन केस ऑफ एनिमल डज नॉट डिसाइडेड from their age, it will decide from their body weight, है ना? यस सर. पढ़ा है ना? तो कितना बॉडी वेट एटलीस्ट अटेन करना चाहिए एनिमल को जिससे कि वो ये मान कि उसने अपना प्यूबर्टी अटेन कर लिया है. So 300 to 400 60 to 70 when animal attain 60 to 70% body weight, adult body weight, then he or she can attain its puberty or sexually mature, है ना? As in case of females, in males also low plane of nutrition delay puberty, as I discussed above. As in case of females, in males also low plane of nutrition delay puberty. The adverse effect of malnutrition are more pronounced if they occur in early life than post weaning. अगर malnutrition किसी मेल का early life में है तो वो उसकी जो ब्रीडिंग एज है या जो उसका ब्रीडिंग साइकिल है वो उसको ज्यादा हैम्पर करेगा इन कंपैरिजन टू लेट malnutrition. इन लेट एज में अगर उसको malnutrition दिया जाएगा तो वो उसकी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस को कम अफेक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू इन अर्ली एज. तो अर्ली एज में मेल काफ्स का जो न्यूट्रिएंट, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाद में आप उसका न्यूट्रिशन मत दो, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि द एडवर्स इफेक्ट ऑफ malnutrition आर मोर प्रोनाउंस्ड इफ दे आर ऑकर इन अर्ली life than post weaning. Okay, in controlled experiment, low protein feeding delayed puberty of bulls by 5 months, and such bulls had poor testicular development and small ejaculate volume as compared to their normal counterpart. Okay, the vitamin A and zinc are very crucial for maintaining proper reproductive performance in breeding bull. So vitamin A and zinc deficiency can also delay puberty, reduce libido, and may affect integrity of testicular tissue, and hence special care need to be taken to prevent deficiency of these two critical nutrients. So which are the critical nutrients for breeding bulls in terms of vitamin and minerals? The energy and protein is the macronutrients. So micronutrients in terms of vitamin A and in terms of mineral is zinc is very crucial for breeding bulls. Okay. Any queries? About 40 to 60% restriction of energy and protein during growing phase causes retardation of testicular growth, and the effect persists throughout the life. अगर growing phase में more than 40% या 40 to 60% प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंट डाइट दी जाएगी
तो जो टेस्टिकुलर ग्रोथ है, अगर जो हमने सिलेक्ट किया था बुल ब्रीडिंग पर्पस के लिए, उसकी टेस्टिकुलर ग्रोथ रिटायर्ड होगी, साथ ही साथ ये जो इफेक्ट है वो उसकी थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेंगे, यानी उसकी जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है, वो हमेशा कंप्रोमाइज्ड रहेगी थ्रू आउट द लाइफ if we compromised his nutrition during early growing phase. Clear? On the other hand, feeding high concentrate diet, 80% concentrate in dry matter, to growing bulls reduced testicular sperm reserve and also reduced semen quality as compared to total roughage diet. यानी अगर concentrate को हम फीडिंग हाई कंसंट्रेट डाइट देंगे तो ग्रोइंग बुल्स और उसका टोटल रफेज डाइट को कम कर देंगे, तो भी जो टेस्टिकुलर स्पर्म रिजर्व है और सीमेन क्वालिटी है वो भी वहां कंप्रोमाइज हो जाती है। इट एनर्जी द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर मैच्योर फीमेल बफेलोज, यानी ये आपका ना, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये जो डेटा हैं, ये आपके जीआरएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन देम। इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट ब्रीडिंग बुल्स शुड बी गिवन 100% हायर क्रूड प्रोटीन and 20% higher energy than maintenance requirement for mature female buffaloes. Breeding bulls should be fed with good quality balanced ration. However, care should be taken to avoid overfeeding, as fatness lead to reduced libido and a reduced reproductive performance. जैसे malnutrition या energy protein deficient diet हार्मफुल है और उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को अफेक्ट करती है, उसी तरह एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ protein and energy is also very harmful because it can reduce his libido or make animal more fat or reduce reproductive performance significantly. Okay. Now, this is the nutrient requirement of breeding bulls. When Bercine, Lucerne or cowpea are available, then they can be fed along with the straw or other good quality roughage like oat without any concentrate. However, when straws form the basal ration, concentrate are to be fed. यानी अगर आपके पास लेग्यूमिनस ग्रीन फोडर अवेलेबल है, तो फोडर मतलब ग्रीन फोडर और स्ट्रॉ यानी ड्राई रफेज से ही इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। अगर आपके पास ग्रीन लेग्यूमिनस फोडर नहीं है, तब आपको, और बेसल राशन में आपके पास स्ट्रॉ है, तब आपको कंसंट्रेट उसमें मिक्स करना जरूरी है। When fed non-leguminous green fodder like oat, maize, sorghum, good grazing, etc. form the basal roughage, there is no need to feed concentrate mixture. As above, if non-leguminous green fodder is available in good quantity, then there is no need to mix concentrate mixture in breeding bulls ration. Okay. एंड दिस इज, आप लोग को ये तो समझ में आता है ना कि ये रिक्वायरमेंट कैसे है, इसको कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा है कि जब पिछले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कितना पढ़ा था, 16 से 18%, 17 से 18% क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ लैक्टेशन इन हाई यील्डिंग एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या, ये तो शायद आपने बताया था मेरे को। तो इसको कैसे करोगे, आपकी कितना सीपी का या सीपी कंसंट्रेशन का आप राशन बनाओगे? हेलो, ये ग्रोइंग बुल के लिए है। तो जो 300 केजी का बुल है, एक ये 400 केजी का बुल है, सारे
ग्रोइंग बुल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो 300 केजी का अगर हमको पर डे, ये देखो डेली गेन है 0.5 केजी, यानी पर डे अगर 500 ग्राम का उसका डेली गेन चाहिए है तो हमको उसका ड्राई मैटर इनटेक 6.9 केजी के आसपास फिक्स करना होगा, ठीक है। तो ये जो 6.9 केजी है इसका 2/3, मेरा एरो दिख रहा है सबको, ये यस कर्सर सर, दिख रहा है, यस सर, ये Yes, 6.9 sir. की चारों तरफ घूम रहा है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ना नेक्स्ट उस पे ये वो कर दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन पावर पॉइंट में, अभी मैं टेबल में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है ना बोर्ड पे लिखना मेरे लिए। तो ये देखो 6.9 दिख रहा है। अब ये 6.9 को हम पार्टीशन करेंगे 2/3 और 1/3 में, आ गई पहली बात समझ में। यस सर, और यहाँ पे जैसे अगर 0.5 ग्राम्स या 0.8 केजी या 800 ग्राम्स अगर हमको पर डे इसका गेन चाहिए, बॉडी वेट गेन चाहिए, डेली गेन चाहिए, तो फिर हमको इसका ड्राई मैटर इनटेक 7.5 केजी के आसपास फिक्स करना होगा। तो इसकी फिर पार्टीशनिंग कैसी होगी, 2/3 और 1/3, 2/3 रफेज 1/3 कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर वो प्रॉपर और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रीन फोडर इज अवेलेबल फॉर द फीडिंग ऑफ breeding bull, then there is no need of mixing of concentrate in the ration. If there is limited or no green fodder is available, then we should add concentrate in the ration. ठीक है, क्लियर? हेलो, यस सर, Yes, sir. आ गया बात समझ में, ठीक है। Yes, sir. तो अब इसका हम पार्टीशनिंग कैसी करी, इसका 2/3 कितना होता है 5 केजी और 1/3 कितना होता है 2.5 केजी। ये बहुत इजी है इसलिए मैंने कहा इसको मैंने पकड़ लिया अभी, ठीक है, तुम लोग को बिना लिखे दिखाने को। देखो 7.5 का 2/3 यानी 66% लगभग कितना होगा 5 केजी, और 33 या 34% कितना होगा 2.5 केजी, ठीक है। तो पहले नंबर हमको कितना सीपी ड्राई रफेज और ग्रीन फोडर के थ्रू फुलफिल हो रहा है ये कैलकुलेट कर लेना होता है, यानी हमको ड्राई मैटर कितना देना है 5 केजी, क्लियर। ये 5 केजी का 1/3 अगर नॉन लेग्यूमिनस ग्रीन फोडर है तो 1/3 कैसे आएगा ग्रीन फोडर से, और 2/3 5 किलो की बात कर रहा हूँ अब मैं 7.5 की नहीं कर रहा हूँ, 5 किलो जो रफेज की बात कर रहा हूँ। तो 5 किलो का मतलब अबाउट 1.75 kg dry matter comes from green fodder and rest comes from dry roughage, ठीक है। So we will calculate कि how much CP comes from the roughage part, then अब हमको ना जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि रफेज से कितना सीपी फुलफिल हो रहा है, और रफेज मतलब ग्रीन और ड्राई दोनों रफेज से, तो अब कितना सीपी बचा है, ठीक है। और हमारे पास ड्राई मैटर इनटेक कितना बचा है कंसंट्रेट के रूप में 33%। तो जो हमको कंसंट्रेशन उसका फिक्स करना है, जैसे मान लो कि अभी हमको उसको देना है 500 ग्राम क्रूड प्रोटीन, अभी रिक्वायरमेंट बची हुई है उसकी, समझ रहे हो मेरी बात। रफेज, ड्राई रफेज और ग्रीन रफेज का ड्राई मैटर पूरा करने के बाद उसमें सीपी तो बहुत कम होता है, यस है ना, क्रूड प्रोटीन तो बहुत कम होता है। तो उसको देने के बाद अब हमारा मान लो 500 ग्राम बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है 784 केजी लिखा हुआ है ना, कहाँ गया ये देखो 784 केजी लिखा हुआ है, 0.784 केजी क्रूड प्रोटीन, यानी 0.784 केजी का मतलब है 784 ग्राम्स क्रूड प्रोटीन। अब इसका मान लीजिए कि 284 grams crude protein is fulfilled by roughage, so है ना। तो बचा कितना 500 grams, और यहाँ पे हमारे पास ड्राई मैटर का हमारे पास कितनी लिमिट बची है 2.5 kg, 2.5 kg। तो 2.5 kg इंटू 20, अगर हम 20% का कॉन्सेंट्रेट फॉर्म करें तो ये
2.5 kg कॉन्सेंट्रेट खिलाने पे उसको 500 ग्राम क्रूड प्रोटीन मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? 20% का मतलब ये होता है कि 1 किलो, अगर if we fed 1 kg concentrate mixture, then it will provide 200 grams of crude protein to the animal. Then अब अगर वो 1 किलो कितना दे रहा है, 200 ग्राम, तो 2.5 किलो कितना देगा? 200 into 2.5 है ना? तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम। तो इस तरह से इसकी कॉन्सेंट्रेट का हम कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं। ठीक है, अब मैंने आज ट्राई किया आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ वो देने का। तो ये है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये लाइव वेट है 400 केजी का, 500 केजी का और 600 केजी का। अगर किसी को जो मैंने अभी डिस्कस किया वो समझ में नहीं आई पार्टीशनिंग, तो मैं एक अलग पीपीटी बना के आप लोग को नेक्स्ट वीक बता दूंगा। नेक्स्ट वीक या आप लोग का एग्जाम कब है? सर नहीं पता अभी कब। 3 एग्जांपल्स दिए हैं, एक 700 केजी का उसका जो बुल है शेड्यूल, तो उसका ऐसा हो सकता है कि इससे ऐसा हो सकता है कि सीरियल फोल्डर 0.8 kg de-oiled और de-oiled सोयाबीन के, और de-oiled सोयाबीन 10 kg बरसीन, 10 kg बरसीन, 10 kg straw, de-oiled 1.2 kg de-oiled सोयाबीन के और de-oiled सोयाबीन के, 8 kg straw, 8 kg straw, 2 kg concentrate, 23 kg green fodder, 23 kg de-oiled groundnut के, de-oiled सोयाबीन के, और ये क्या बता रहा है तुमको? ये क्या बता रहा है तुमको? ये बता रहा है पहले क्या है सीरियल, पहले क्या है सीरियल, जैसे मक्के का भूसा है, जैसे मक्के का हरा चारा, मक्के का 40 किलो वो दे दो, 40 किलो वो दे दो, किलो de-oiled groundnut, किलो de-oiled groundnut। अगर आपके पास बरसीन, अगर आपके पास फोल्डर भी है, स्ट्रॉ भी है, और आपके पास भी है, और आपके पास कंसंट्रेट लगभग ऐसा कंपोजिशन, लगभग ऐसा कंपोजिशन फुलफिल कर पाएगा 700 फुलफिल कर पाएगा 700 केजी। अगर आपके पास स्ट्रॉ भी है, अगर आपके पास यहाँ पे भी है, और ये लिमिटेड है, जैसे ये लिमिटेड है, जैसे कम जरा दे रहे हैं, देखो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन ये कैसा लिखा है, लेकिन ये कैसा लिखा है, ये कैसा है नॉन लेग्यूमिनस, ये कैसा है नॉन लेग्यूमिनस, और ये कैसा है लेग्यूमिनस, और ये कैसा है लेग्यूमिनस है। तो ये नॉन लेग्यूमिनस मिक्सचर और कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर 1 kg straw, de-oiled groundnut cake और de-oiled groundnut cake और de-oiled soybean, every 50 kg increase, every 50 kg increase or decrease body weight from 700 kg, body weight from 700 kg, 0.6 kg। अब ये देखो ऊपर वाला जो है, ये देखो ऊपर वाला जो है ना 700 kg का एक 700 kg का आइडियल ले लिया अपन ने, एक आइडियल ले लिया, उसमें से अगर 750 का है या 650 का है या 650 का है, क्या तो घटाना बढ़ाना पड़ेगा, वो हटाना बढ़ाना पड़ेगा, वो 0.6 kg की 0.6 प्लस 100 ग्राम de-oiled, 100 ग्राम de-oiled कर सके इस वाली डाइट, कर सकते हैं इस वाली डाइट। अगर वो 750 kg, अगर वो 750 kg का है, 650 kg का है, 650 kg का क्वांटिटी को इसी क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे उसमें से, ऐसे यहाँ पे 3 kg, ऐसे यहाँ पे 3 kg इंक्रीज राशन दी सेकंड राशन, थर्ड राशन में 3 kg में, थर्ड राशन में 3 kg एडेड सीरियल फोल्डर शुड बी एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द राशन, सजेस्टेड फ्रॉम द राशन, सजेस्टेड फॉर 700 kg बॉडी वेट। ओके, यहाँ पे इसका ये यहाँ पे इसका है, जो ग्रोइंग बुल है वो डायमेटर रिक्वायरमेंट, प्रोटीन डायमेटर रिक्वायरमेंट, मैंने इसको डिस्कस भी किया है, देखो मैंने इसको डिस्कस भी किया है। और ये दो चीज है, ग्रोइंग दो चीज है, ग्रोइंग एनिमल की रिक्वायरमेंट, ग्रोइंग एनिमल की रिक्वायरमेंट डेली गेन के हिसाब से डेली गेन के हिसाब से उसका डायमेटर एनर्जी, प्रोटीन और रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है, रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट का बॉडी वेट है, जल्दी जल्दी उसका बॉडी वेट उसका डायमेटर, और तो हमको उसका डायमेटर एनर्जी और प्रोटीन पड़ेगा, एनर्जी और प्रोटीन में ज्यादा देना पड़ेगा। ये 400 के उसके क्या ना चाहिए 400 क्या ना चाहिए 400 किलोग्राम का अगर किलोग्राम का 500 किलोग्राम का 500 किलोग्राम का ग्रोइंग बुल है। ये देखो कॉन्सेंट्रेट का न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है, न्यूट्रिएंट आइडियल है, वो क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे जैसे डाइट है, जो यहाँ पे जैसे डाइट है,
ड्राई मैटर उसका 90% होना चाहिए, 90% होना चाहिए, नॉट बी मोर देन 10% TDN, देन about 65% और about 65% और क्रूड प्रोटीन फूडर 20% ड्राई मैटर, 50% ड्राई मैटर, 25% TDN, 0.5%। एक आइडिया ले दिखाया है इनने, ठीक है। Examples of feeding schedule per day for 300 kg body weight, 500 kg body weight, 500 gram gain per day। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कंसंट्रेट कितना देंगे, ग्रीन फूडर कितना देंगे, ग्रीन फूड ड्राई मैटर कितना 6.95, कितना 6.95, कितना 3.8, टोटल कितना 3.8, कितना 6 to 9.5, बैलेंस 6 to 9.5 बैलेंस। अब ठीक है, अब ये तो क्या था, ग्रोइंग बुल का यहाँ पे डेली एनर्जी प्रोटीन डाइट रिक्वायरमेंट फॉर यहाँ पे TDN, मतलब यहाँ पे देखो, मतलब ये यहाँ पे देखो, ये बच्चों जैसे बता रहा हूँ मैं, लेकिन बच्चे टेबल देखते ही नहीं है, समझ नहीं आती कई बार। ये डिफरेंस है मैच्योर में आपको डेली गेन का कोई केवल जो बॉडी वेट है, केवल जो बॉडी वेट है उससे जो ड्राई मैटर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि उसका बॉडी वेट गेन है, जो उसका बॉडी वेट गेन है। इन ग्रोइंग बुल्स एंड बॉडी वेट गेन deciding for dry matter intake, मतलब पहले हमको ड्राई मैटर इंटेक करना होगा, उसके बाद ही TDN और बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से वहां पे हमने 16% यहाँ पे भी 65% CP, 65% लगभग वही वैल्यूज हैं, और ये एग्जांपल पर डे फॉर ए बुल, फीडिंग शेड्यूल पर डे फॉर ए बुल और बॉडी वेट 600 kg, आइडियल 600 kg का, आइडियल 600 kg का ब्रीडिंग उसका है, यहाँ पे उसका एक यहाँ टाइट चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। फीडिंग ऑफ वर्किंग बुल्स डिस्कस्ड